केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल द्वारा तैयार बियॉन्ड द विजिबल ए हैंडबुक ऑन डिसेबिलिटी इंक्लूजन फॉर पार्लियामेंटेरियन का विमोचन करते हुए कहा कि वर्ष 2027 की जनगणना देश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसके माध्यम से दिव्यांगता की सभी 21 श्रेणियों को सटीक रूप से चिन्हित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित गणनाकारों और बेहतर डाटा संग्रह प्रणाली के जरिए प्राप्त जानकारी से सरकार दिव्यांगजनों के लिए अधिक प्रभावी और लक्षित नीतियां बना सकती है। इस कार्यक्रम में सांसद ईटी मोहम्मद बशीर, सांसद एवं केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के सदस्य इटाला राजेंद्र, लोकसभा सांसद डॉक्टर फौजिया खान, राज्यसभा सांसद डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी नेहा जोशी, बीजेवाईएम और अनीश गवांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। एनसीपीईडीपी के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने कहा कि यह हैंडबुक संसद सदस्यों को दिव्यांगजनों से जुड़ी बाधाओं को समझने और उन्हें दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि इससे दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को व्यवहार में लागू करने में मदद मिलेगी। आइए सुनते हैं क्या कहना है रामदास अठावले जी का एवं अन्य सदस्यों का। It's a very good move and it is inevitable also. This event is very important. You have distributed, released a book also to enlighten the people about the need of this. The need, very important thing. Unfortunately, differently able persons are not getting justice in many ways. There are a lot of grievances. So this move, I believe, will strengthen the demand and more people will be aware of the need of this research. I really congratulate the organizers of this seminar and wish them all the best in this noble cause. Thank you very much. So I am here for this event today and I feel good to be here. This is my second time that I am attending the event arranged by this organization, and I am happy to be here because it's a very genuine issue. When you talk about disability, there are so many kinds of disabilities. There are physical, there are mental, intellectual, sensory, and what I feel is that almost every person who is born on this earth possesses some kind of disability or the other. So we associate very closely with this, and we hope that the government comes in with better policies. I agree that only welfare schemes are not adequate. What we need is policies that really bring out the talent that we have in people. It is said that it is not actually disability, it is special abilities. And because these are specially abled people, so they possess something which is very good in some other area, where the area if they have been deprived in something. So I think this talent needs to be brought out. They need to be included in everything. There has to be policy which avoids discrimination in society against them, which gives them equal opportunity, which makes these people having welfare become participants of better welfare schemes. They get pensions to a more better sum of better amount, which is more respectable in nature. They get health welfare schemes like Ayushman Bharat, and there are various other areas in which we need to have a better policy. So I think as politicians we all should come together and advocate for this, because once again I will say every one of us is disabled in one way or the other. Especially intellectual disabilities, I think needs a close attention from the government, because we do not have proper policies for intellectual disabilities, which they say 1 in 6 people has in this world. So I think it's a large number,
and we need to really all get together and work for this feat. Thank you. दिव्यांग बंधु जो हमारे हैं, दिव्यांग बहनें हमारी हैं, इन मुद्दों के प्रति समाज में एक जागरूकता कैसे आए, तो इस नाते एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो नेतृत्वकर्ता हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप में लोग काम करते हैं, अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों में काम करते हैं, उनका एक जुटान है, उनका एक सम्मेलन है। और हम जैसे लोगों के लिए भी ये ज्ञानवर्धक प्रक्रिया है। वी बिकम मोर सेंसिटिव, वी बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ द इश्यूज़ ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड। हमारा नेतृत्व जो है वो डिफरेंटली एबल्ड कॉन्शियस कैसे हो, डिफरेंटली एबल्ड लिटरेट कैसे हो, और डिफरेंटली एबल्ड के मुद्दों को सदन में और बाकी मंचों पे लगातार कैसे संवेदनशीलता से हम उठाएं, उस दिशा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 2011 के सेंसस में हमने देखा कि लगभग 3.25 करोड़ लोग दिव्यांगजन थे। 2027 में ये संख्या 5 करोड़ हो सकती है, जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से अधिक है। तो आने वाले समय में संवेदनशीलता के साथ, समाधान केंद्रित विचारों के साथ हम इन इश्यूज़ को कैसे अप्रोच करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या एक कमिटमेंट है, उनकी प्रतिबद्धता है। इंक्लूजन की बात करें तो समाज के वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों को सशक्त करना उनका एक दायित्व बोध के साथ वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पहली बार एक आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची है। तो निश्चित रूप से सर्वसमावेशी, सर्वव्यापी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मानसिकता से हम काम करें। और इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से उस दिशा में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप हुआ है। सर, ये हैंडबुक कोई बदलाव लेके आएगी या केवल कागज़ का पन्ना बन के रह नहीं, जाएगी? देखिए, मेरा मानना है कि छोटे छोटे कदमों से ही एक बड़ा प्रयास होता है। स्मॉल स्टेप्स ओनली ट्रांसफॉर्म इनटू बिग रेवोल्यूशंस। हर छोटे प्रयास का हमें स्वागत करना चाहिए। ये प्रयास है और इस प्रयास से अगर थोड़ा बहुत भी परिवर्तन होता है तो स्वागत योग्य है। धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसी संगोष्ठियों का लगातार आयोजन किया जाना चाहिए। और जो सामाजिक न्याय का आंदोलन है, सामाजिक न्याय का विमर्श है, उसमें प्रायः हम लोग दलित समाज की बात करते हैं, आदिवासी समाज की बात करते हैं, लेकिन उसमें दिव्यांग समाज की भी बात तो हो। इस दिशा में ये प्रयास अत्यंत ही आवश्यक है। यदि हम 2011 के सेंसस की रिपोर्ट को देखें तो लगभग 2 करोड़ 68 लाख ये संख्या दिव्यांगजनों की थी, लेकिन 2027 के सेंसस तक 5 करोड़ की संख्या अनुमानित है। ये ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से भी ज़्यादा बड़ी संख्या है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में कैसे डेवलप करना है, हमारे दिव्यांग बंधु के मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ समाज और संसद में कैसे लेकर के जाना है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत ही आवश्यक है। कम से कम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय के करीब ये मामला है। ये जब उन्होंने दिव्यांग जनों की बात कही तो स्वतः एक सृजनात्मकता, एक संवेदनशीलता का एक आगाज़ हुआ। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट की बात हो, सुगम भारत अभियान की बात हो, मेंटल हेल्थ एक्ट की बात हो, ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों की बात हो, हर दिशा में, हर मंच, हर मोर्चे पे जो डिफरेंटली एबल्ड के मुद्दों से जुड़ता है, उसमें एक सकारात्मक प्रयास हुआ है और करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार का स्पष्ट रूप से ये मानना है कि विकसित भारत की संकल्पना में, इन द रियलाइजेशन ऑफ द इमेजिनेशन और द विजन और द संकल्प ऑफ विकसित भारत, a very strong foundation, a very strong pillar is of the rights of the marginalized and especially categorically the rights of our differently abled friends। इस कार्यक्रम का आयोजन और यहाँ पे अलग अलग स्टेक होल्डर्स, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से मिलना मेरे लिए भी एक ज्ञानवर्धक अनुभव रहा। मेरी आयोजकों की पूरी टीम को बहुत सारी बधाई है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आगे भी इसी प्रकार, इसी उत्साह के साथ, इसी उम्मीद के साथ इस विषय को उठाइए। सर, वेट सर। दिव्यांगजन therein all India as per 2011 census. And our wish, social justice and empowerment, and our wish also working for the disabled community. You know that Narendra Modi is the Prime Minister of India. When he became the Prime Minister of India, he thought, disability is there, but
इनाम देने का प्रयत्न हमारे मंत्रालय ने किया और अनेक निर्णय भारत सरकार ने लिए। सुगम्य भारत योजना शुरू की, जो डिसेबिलिटी 7 पर थी, अभी 21 पर डिसेबिलिटी का निर्णय सरकार ने लिया है। भारत सरकार की एक बड़ी भूमिका है कि हमारे एलिको कंपनी है, एलिको कंपनी के सहयोग से देश भर के हर जिले जिले में हम ईडी कैंप देते हैं और वहाँ 1000, 2000, 3000 लोगों को सहायता करते हैं। बहुत सारी यूट्यूब भी है, वो भी मतलब CSR के माध्यम से अनेक लोगों को मदद करने का प्रयत्न करते हैं। जब हमारी सरकार आई तब बोले 3% आरक्षण और in some cases. But our government has taken the decision to give a 4% reservation for disabled people. 5% reservation in the education. ये निर्णय भी बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ। ये बहुत जगह पर मतलब अपना रिजर्वेशन ठीक नहीं मिला। हमारे मंत्रालय की तरफ से कोशिश होती है। मैं जिस राज्य में जाता हूँ वहाँ मैं अधिकारियों की मीटिंग बुलाता हूँ, कुछ डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाता हूँ और उसमें कितने लोगों को डिसेबल दिव्यांग लोगों को नौकरी दी है इसकी जानकारी भी मैं लेता हूँ। और जहाँ बैकलॉग पूरा नहीं हुआ है वहाँ बोलने की आदेश भी हम उनको देते हैं। जहाँ कॉर्पोरेशन होती है, महानगर पालिका होती है, वहाँ उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वैसे हमारी कोशिश ये भी प्राइवेट सेक्टर में भी अगर उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है क्या, उसको विचार किया जा सकता है। अगर कानून बनना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, रिलायंस कंपनी, अदानी कंपनी, गोदरेज कंपनी, बजाज कंपनी, वैसे कंपनी के लोगों ने भी डिसेबल के लोगों को उनके क्वालिफिकेशन के मुताबिक उनको वहाँ भी ऑफिस में और अनेक जगहों पर रोजगार देना चाहिए। उसके लिए प्रयत्न किया जा सकता है। एनजीओ के माध्यम से जो कंपनियों के मालिक से या कंपनी के मैनेजर से बात की जा सकती है और अगर आपको कंपनी चलानी है तो आपके मन में दिव्यांगजनों के बारे में अच्छी भावना होनी चाहिए। अभी कब और क्या दिव्यांग होगा मालूम नहीं है। बहुत सारी नेशनल कलामिटी होती है, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे बच्चों को हमने ये भी निर्णय लिया है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसका ठीक चेकअप होना चाहिए। उसको सुनने के लिए आता नहीं क्या, देखने के लिए आता है क्या, और उसमें क्या उनके शरीर में प्रॉब्लम है, ये जानकारी अगर शुरू में मिलती है तो उनको उसी तरह की ट्रीटमेंट दी जा सकती है। अभी मेरे पार्टी में मेरी पार्टी ही कांग्रेस पार्टी की है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस पार्टी की स्थापना की थी। वैसा हमारा दलित समाज में भी था, उनको चलने के आता नहीं था, चलने के आता नहीं था मतलब वो गाँव के बाहर था, वन समाज थे। उस समाज को न्याय देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया और हमारा समाज भी दिव्यांग था, लेकिन आज शिक्षा में रिजर्वेशन मिला, नौकरियों में रिजर्वेशन मिला, तो आज हमारे समाज के लोग चीफ जस्टिस भी बन रहे हैं, हमारे समाज के लोग राष्ट्रपति बन रहे हैं, हमारे समाज के लोग मंत्री भी बन रहे हैं।
आज अपने देश के राष्ट्रपति आदरणीय मनमोहन जी, इनको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको ट्राइबल कम्युनिटी जो है उनको देश के राष्ट्रपति बनाई है। बड़े क्षेत्रों में लोग अभी जा रहे हैं। उसी तरह दिव्यांगजनों को भी मतलब वो अधिकार मिलना चाहिए हर जगह पर, और उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। वैसा जो मोदी सरकार की अन्य कई वजह है, जैसे सुबह में भारत अभियान है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी पोर्टल है, पीएम दक्ष की तरह कौशल विकास कार्यक्रम और आयुष्मान भारत के अंतर्गत विशेष प्रयास विकलांग व्यक्तियों को हमारे विकास यात्रा में मुख्य धारा में लाने के लिए हमारा निरंतर कार्य चल रहा है। एक तो हमारे सरकार ने लगातार ये जोर दिया है समावेशन की कानूनी नीतियां और बजट में शुरू से ही प्रतिबिंबित होना चाहिए। RPWD एक्ट और उसके बाद इन्होंने मूलभूत आधार तैयार किया है। संसदीय सदस्य अब इस हैंडबुक का उपयोग करके विधायी कार्य और बजट नियोजन में विकलांगता संबंधी मुद्दों का अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत कर सकते हैं। प्रतिनिधित्व और भागीदारी कैसी है? सरकार बने। एक बार फिर मैं NCVEDP के जो मतलब जिनके तरफ मेरा हमेशा रहता है ध्यान, जिनके तरफ मेरा हमेशा रहता है ध्यान, उनका नाम है अली अरमान। वो तो दिव्यांगजनों की जान, इसीलिए वो दिव्यांगजनों में बहुत ही फेमस है हमारे अली अरमान भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जरूर लोग चल नहीं सकते, लेकिन दूसरों को चलाते हैं, दूसरों को एक दूसरों को मिलाते हैं और अपने पीछे से हर जगह पर पहुँचे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये भी मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जो राष्ट्रीय विकलांगता नेटवर्क और बजाज CSR को इस मूल्यवान योगदान के लिए मैं बधाई देता हूँ। भारत सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और किसी भी नागरिक को पीछे नहीं छोड़ने का हमारा संकल्प है। किसी दिव्यांगजनों को साथ में लेकर उनके डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनको और भी ज़्यादा अपने पैर पर खड़ा करने के लिए जरूर हमारी सरकार प्रयत्न करती रहेगी। ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। और यहाँ हमारे नवनीत आनंद जी है, गुरु प्रकाश जी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है, उनके पिताजी संजय पासवान जी जो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी रहे थे, लोकसभा में भी रहे थे। और इसी तरह मतलब आज मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आज मुझे आपने बुलाया है और बहुत इम्पोर्टेंट जो किताब है डिसेबिलिटी के लोगों की क्या प्रॉब्लम है, उनके लिए सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं और गवर्नमेंट ट्रेनिंग संस्थानों ने दिव्यांगजनों के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में छोटा बुक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। और इस किताब पर मुझे आज हुआ है ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। और मेरा मंत्रालय जो है दिव्यांगजनों के साथ है और उनके जो भी समस्या होगी उसके लिए हम आपको पूरी मदद करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार अरमान का करता हूँ और इतना करना चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। ये हमारे दिव्यांगजनों के नेता भी है, उन्होंने बजाज कंपनी के सहयोग से ये बुकलेट छपाया है
और उसमें दिव्यांगजनों के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं, दिव्यांगजनों की क्या समस्या है, दिव्यांगजनों के लिए हर पार्लियामेंट्रियन ने हर सांसद ने अपने क्षेत्र में कैसी मदद करनी है, उसके बारे में जानकारी देने वाला एक किताब है। और आज उसका विमोचन हमारे हाथ से यहाँ हुआ है। आज दिन भर यहाँ दिव्यांगजनों की समस्या पर चर्चा भी होने वाली है। सरकार ने तो निर्णय लिया है कि भाई 2016 में हमने कानून भी बनाया है और सुगम्य भारत योजना जो है उनके लिए हमने बनाई है। दिव्यांगजनों के लिए ईडी कैम्प के माध्यम से हम लाखों लोगों को मतलब आज तक हमने कम से कम 20 लाख से ज़्यादा लोगों में साहित्य बांटा है माध्यम से। और दिव्यांगजनों को पूरी मदद करने का हमारा प्रयत्न है। हमारा दिव्यांगजनों के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय है, स्वतंत्र सेक्रेटरी है। हर मंत्रालय के लिए एक सेक्रेटरी होता है, तो मेरे मंत्रालय में सोशल जस्टिस अलग सेक्रेटरी है, दिव्यांगजनों के लिए अलग सेक्रेटरी है। इसके लिए दिव्यांगजनों की हर समस्या की तरफ हमारा ध्यान है और उनको पूरी मदद करने का प्रयत्न हमारा है। तो आज की किताब के माध्यम से हर सांसद को मेरा निवेदन है कि इस किताब को पढ़े और अपने क्षेत्र में जो भी दिव्यांगजन है उनको पूरी मदद करने के बारे में उन्होंने प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।